Hi, good evening. चलो बढ़िया कथा कही। Am I audible? Hello. Hello. Hi, good evening. This is Dr. Devitosh Acharya from the Cordelia. I hope I am live on Facebook that you must be watching. All of you must be watching me live. And today, as discussed and as posted earlier, informed earlier, we will be learning a very interesting topic of mathematics today, and that topic is complex number. Complex number. Clear? I hope the visibility for today is good. Okay. So now the topic is complex number. As the topic is complex number, so as I committed that we are going to make it simplex. It's going to be much simpler today. Okay. So Renu madam, please check it. Okay. So now we are going to make it very simple, simpler, simplest. Clear? So let me take a sip of tea. I'm sorry. Okay. So now, when I'm going for this complex number, then when I say, so let us know what a complex number is and what is the number system. First of all, let us know, get acquainted with the number system. From where the complex number comes. Okay. Now, prior to that, I hope all of you must be knowing the quadratic equation. Yes or no? All of you must be knowing the quadratic equation. So in quadratic equation, there is a discriminant. Okay. So that we all are concerned, we are connected, we know about it. Okay. So when we speak of discriminant, mostly there are some conditions. There are some conditions. Okay. What are the conditions? What is a discriminant? First of all, no. What is the value of the discriminant and what is the quadratic equation? Abhishek will say that answer. So b square minus 4ac root 2. Is it? Pakka? Then x equals to the root value of minus b. Then plus minus divided by 2a. Clear? That we know this all. Is it visible to you all? Okay. So we know this all, and there are some conditions. Conditions if b is greater than 0, if b is equals to 0, and b is less than 0. Okay, let me take a second. If b is greater than 0, then the root is real and distinct. So then the root is real, and clear. And if b equals to 0, equal, very good. If b is less than 0, no real roots. No real roots. So these are the three conditions, three cases. Okay.
These are the three conditions and three cases. So हम लोग करके कहाँ पे? तो ये कंडीशन तो हमको ये दोनों कंडीशन जो है, two conditions, okay, two conditions. I hope all of you must be knowing this. I'm making it simple. I'm recalling you the quadratic equation earlier. Okay, as we know, you don't know the quadratic equation. Okay, we'll discuss that. So, whoever knows quadratic equation, so I am discussing this. I am getting recap of the equation from where how we are getting connected to the complex number and from where the need of complex number comes. These two conditions are understood. But from here, there is no real rules. Okay, this brings the concept of complex number, or this brings the reason of complex number, and now here comes the need of complex number. I am again getting into another simpler version of it. Okay, those who do not know this, okay, or have forgotten something, so this is the first case that I have discussed, and the second case I am coming to. Now let us go back to the number system. Okay, let us come to the number system. It's very important, all of you to recall the number system that you all know about. When I speak number system, the first number comes natural numbers. Okay, natural numbers. Okay, when we speak of natural numbers, is it visible to all? Okay. So now comes natural numbers. So what are the numbers which we call natural numbers? 1, 2, 3, 4, infinite. Okay, we call these as natural numbers. Then what we are missing here? Is a whole number. 0 is missing. When we add a 0, then we call that. Now this set becomes a whole number. Now this set becomes a whole number. Clear? Now we can say from 0 to infinite, all the positive numbers are whole numbers. Is it clear? Now we are coming. What again we are missing? The negative numbers. On the line that we know that this is 0, then left the numbers are negative and right the numbers are positive. So in whole numbers we couldn't find any negative numbers. Then there comes the concept of integers. Then come the integers. What? -1, -2, -3. These are all called what? Infinite. So these are called integers. Sorry. Now we can say this whole set is a what? Integers. It comprises all the positive numbers, 0 and negative numbers. Clear? Now I am coming to when we speak of integers. Okay, now what we are missing? Somewhere and something that we are missing, and that we are missing the rational numbers. We are missing the rational numbers. So what are the rational numbers? Now these are the numbers which are made of fractions. Okay, so we write it in a P by Q form, where Q is not equals to 0. So I can say 5 by 6, 2 by 4. So now when I speak of rational number, this whole set now makes rational number. If I say 5 by 1,
It is a whole number. Yes or no? And it is a rational number also. So we can call it the way. So now this whole set, now it comes under this. Again we are coming to one thing, which is out of this set, which is not in the set, that is irrational numbers. So here we are taking a small patch and we are calling the irrational numbers. So what are the irrational numbers? Root 2, root 2, root 3, pi. These are all irrational numbers. So when we make a set of it, now we call it as a real number. We call it as real number. Clear? I hope all of you must be finding it very interesting, and I would ask all of you to chat, participate or something if you have any queries and some anything you want to know, and you can take a snapshot of this and you can get the video also further. Okay. So now we came to the real number. So the real number, it comprises of the rational number and the irrational number together. Clear? So इसके बाद आता है समय, ये तो हो गया, number system is completed. Number system is completed. तो इसके बाद आता है, now comes, these are all real existing numbers. अभी इन नंबरों का जो है बाप, ओके, सरदार जो है गब्बर सिंह, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर. वो क्या है? वो है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इन नंबरों का जो सरदार है गब्बर सिंह ऑफ ऑल नंबर्स कम्स कॉम्प्लेक्स नंबर. सो अभी हम लोग क्या करेंगे? सरदार को थोड़ा रेड में लिखेंगे, सरदार को सरदार है, तो इसीलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखेंगे. तो ये क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज इसमें इमेजिनरी पार्ट, सो ये एक इमेजिनरी नंबर है. ओके, तो इसमें ये कहा जाता है, ये इसका एक राइटिंग फॉर्म है जो मैं अभी लिखूंगा, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो है कि रूट ओवर ऑफ माइनस वन. ओके, रूट ओवर ऑफ माइनस वन या तो फिर स्क्वायर का माइनस वन. तो ये क्या रिलेशन है? ये चीज क्या है? ओके, ये सब चीजें जो है ये इमेजिनरी, ये हमको लगता है इमेजिनरी नंबर है. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द मेन कॉन्सेप्ट. सरदार जो है वो है कॉम्प्लेक्स. ओके, सरदार जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसमें ये बताया जाता है, अभी ये जो है इसको मिटाने जा रहा हूं मैं. Is it clear to all of you? All of you have mentioned. I hope you must have taken a snapshot of it. Otherwise, now you can take. Okay, I am taking you. I'm just giving you a chance. You haven't written. Okay. So now those who are attending the class, they should get a clip. Okay. चलो, अभी इसको मिटा देते हैं. चलो, अभी हम लोग we could know about the complex number. Okay, we could know about we knew about the number system and how the complex number comes from where. Madam, see later on. I have got back the rule of it.
Exactly. Now, while coming to this complex number system, so हम लोग लिखते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1। किसी का स्क्वायर वो नेगेटिव नंबर कैसे हो सकता है? किसी का स्क्वायर वो नेगेटिव नंबर कैसे हो सकता है? इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे सोम्या इज इमेजिनिंग he is dancing with Katrina Kaif. So सोम्या जो है छोटा सा लड़का, कटरीना जो है 6 फुट शायद बहुत लंबी है, सोम्या इतना सा, तो आप दोनों डांस कर रहे हैं। So I could visualize, huh? You are 5 feet and she is 6 feet. So there is a difference of 1 feet. Okay, you together dance. Okay, and it's a very I could imagine. I could see the scene. So, but इसमें क्या किया जाता है, जा सकता है? उसने इमेजिन किया, करने दो उसको. Okay. So now we are coming. I square equals to -1. It is an imaginary number. और ये I को हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as iota. Okay. So we call I as iota it comes from. So it is an imaginary part of the complex number. It is an imaginary part of the complex number. So here in complex number, what we have taken? We have taken this formula. Okay. So we have taken the value of iota as the square of iota is -1. Clear? The square of iota is -1. So now it's not all over. Now we need to know about many things of complex number, but still also we haven't come to the complex number itself. So in quantum physics, okay, mostly we need this kind of we need the application of this mathematics and all. And now we are coming. What is the form of a complex? What is the form of a complex number? So we mostly write it in a plus ib form, और कहीं पे a plus bi भी लिखते हैं, कोई बात. So now we are having, this is the real part and this is an imaginary part. जहां पे a और b are real numbers. Clear? So this is the form of complex number. Okay, पहला the first part of the complex number, it is a combination of a real number and an imaginary number. Again, if the first number is completely real, in the second part of the number, it is a collection of real number and the iota associated with iota. Now, so here this is the form of a complex number. I hope all of you could have written it up, or you could have recall it. Some those who are studying complex numbers, they can recall. Okay, and those who do not know, they should write it up. A plus IB. This is the form. Okay, here where A and B are real numbers. Okay, the first part is this and second part is this. So let us take an example. Example में होगा. अभी हम लोग लिखेंगे 2 plus 4i. Clear? 2 plus 4i. तो 2 plus 4i जो है, ये 2 and 4 are real numbers. Yes or no? And this is the form how we write complex. When you are adding, taking the sum of complex numbers,
when you are doing subtraction of complex numbers, when you are doing multiplication of complex numbers, when you are doing division of complex numbers, all the operations, mathematical operations or arithmetical operations that we are doing with this number must be obtained in this form. It's very interesting we are doing. This number, its name is complex number, but it is not going to be that complex for you. I hope till this you understood. Okay. Now what we are doing, a plus ib का एग्जाम्पल हमने लिया 2 plus 4i. Okay, so 2 is a real number, 4 is a real number, and this is iota, and this is the imaginary part, and this is the real part. Clear? लॉक किया जाए? कोई शक? Okay. अभी हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, कुछ छोटा छोटा कुछ करते हैं इसमें. ओके, कुछ छोटा छोटा कुछ करते हैं. सो हम लोग बोलेंगे 2 plus 4i, दिस इज z1. ओके, और हाँ, ये सबसे पहले समझ ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज denoted as z. क्लियर? तो यहां z1 is one complex number. Now z2 is another complex number जिसका वैल्यू है 3 plus 7i. क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, we will go for an addition of z1 plus z2. क्लियर? तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू? रियल प्लस इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी. ओके, कैसे करेंगे? ये 2, तो इसको हम लोग पूरा सीधा लिख देते हैं, 2 plus 4i plus 3 plus 7i. That equals to 2 plus, ये real plus real, 2 plus 3 equals to 5 plus i कॉमन ले लेते हैं, 4 plus 7 equals to 11. ओके, तो ये नंबर कितना आया? 5 plus 11i. सही है? हाँ, समझे? अंडरस्टूड? कोई मतलब वो क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, कोई भी मतलब दिमाग में लगाने वाला कोई चीज नहीं, सिंपल सा चीज. हमने क्या किया, रियल पार्ट को जोड़ दिया, इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दिया. ओके, सो जो ये दोनों को हम ऐड करें, ये दोनों को ऐड करें, इन दोनों में i कॉमन है, ये तो मैथमेटिक्स है. और जो i को कॉमन ले लिया और जो रियल पार्ट को जोड़ दिया, हमने क्या किया, i को कॉमन लेके रियल पार्ट को जोड़ दिया और a प्लस ib फॉर्म में या फिर bi फॉर्म में लिख दिया. अंडरस्टूड? a प्लस bi फॉर्म में लिख दिया. अभी हो गया, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया ये. क्लियर? हाँ, अभी आप लोगों को मैं दे रहा हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो इसको आप लिख के करो. तो हम लोग नॉर्मली एडिशन को ऐसा लिखते हैं, z1 equals to a plus bi and z2 equals to c plus di. तो z1 plus z2 क्या होगा, a plus c plus i into b plus d. ओके, सो ये आपका एडिशन का फॉर्म. सो ये आपका फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट नंबर रियल नंबर, ये सेकंड टर्म रियल नंबर ऑफ जिसको हमने मिला दिया यहाँ पे. तो हमने एग्जांपल इससे पहले हमने सॉल्यूशन ही कर दिया. ओके, सो you can take a snapshot of it or you can write it. Okay, the form of addition.
हो गया? डन, वेरी गुड. So now we are coming with an example I am giving. Let Z1 equals to 6 plus 5i and Z2 equals to 2 plus I. ओके, इसको करके दिखाओ आप. तो Z1 plus Z2 will be equals to 8 plus 6i. 8 plus 6i. Okay, 8 plus 6i. So ये कॉमन सा मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स. तो अभी हम लोग राइट ऑल ऑफ इट हम लोग लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Properties of addition of complex numbers. Clear? Properties of addition of complex numbers. While coming to this, the first law is closure law. The first property is closure law. तो क्लोजर लॉ क्या कह रहा है? क्लोजर लॉ क्या कह रहा है? राइट डाउन. क्लोजर लॉ defines the sum of complex numbers. Sum of complex numbers is a complex number. Sum of complex numbers is a complex. Clear? Yes, sir. कोई शक? Second is commutative. Second is commutative. Okay. Commutative का मतलब क्या है? Z1 plus Z2 equals to Z2 plus Z1. Okay. So the complex number addition, it says sum of complex numbers is a complex number. Second, it is commutative. Third is associative. Third is associative. Third is associative. That means Z1 plus Z2 plus Z3 equals to Z1 plus Z2 plus Z. Okay. It is associative. Clear? Complex number is associative. Then now we are coming to the additive identity. We are coming to the additive identity of complex number. What could be the additive? What does it mean by additive identity? First of all, let us know. Do you know what is additive identity? Having that same random number with another number, if the result The same number. If you add a number to a number, okay, then the resultant number will be the same number. So additive identity. Additive वो क्या होगा इसमें? So Z plus 0 equals to Z. Z के साथ कौन सा ऐसा नंबर हम लोग ऐड करेंगे ताकि हमको वही Z मिले? तो additive identity is 0. Clear? Then comes your additive inverse.
एडिटिव इनवर्स मतलब उसी नंबर से ऐसा क्या नंबर हम ऐड करेंगे या मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें जीरो आए, वो एडिटिव इनवर्स। So z plus minus z equals to 0। तो एडिटिव इनवर्स ये सब सारी की सारी चीजें जो है ये जानना बहुत जरूरी है। सो अभी हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज मिल गया, हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज मिल गया, क्लियर। सो गाइस वी आर मेकिंग दिस Facebook learning platform, and this is Dr. Devitosh Acharya, Chairman the Kautilya. I am your teacher today, and the subject that we are discussing is complex numbers. Okay, it is in your standard level. So whether you are from CHSE board, or you are from ICSE board, or you are from CBSE board, or any board, it doesn't matter. But this subject is in your level. So that's why now we are discussing complex number, and remember it is brought to you by the Kautilya. Okay, so now we are erasing it. अभी हम लोग एडिशन जब हो गया, अभी क्या बाकी है? बाकी जो है वो सब्ट्रैक्शन। बाकी क्या है? तो वो है सब्ट्रैक्शन। बाकी है सब्ट्रैक्शन। बहुत सारे लोग जो है ना वो बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो गलत है। सो हम लोग जो है इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। ओके, सो हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर कुछ इंग्लिश भी हम लोग जानेंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, subtraction in complex number, it is similar to the addition process. So what we will do, let us take z equals to a plus z1 equals to a plus ib, and z2 equals to c plus ib. bi लिखते हैं, bi लिखते हैं, तो वही बात, जो प्रॉब्लम में bi जो है ib वही है। So z1 minus z2 वो क्या, वो ये होगा वही चीज जो एडिशन का जो प्रोसेस हम लोग, हाँ एग्जैक्टली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी, जो कॉमन अलजेब्रा है, जो मैथमेटिक्स है, वही हम लोग कर रहे हैं। a प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी, तो a माइनस सी, क्लियर, a माइनस सी हो गया। अभी हमको क्या मिला है, हमको मिला है, कितना मिला है हमको, प्लस आई बी प्लस आई, अगर हम लोग ले लेते हैं b माइनस b। ओके, अभी मिल गया हमको, कोई शक, हल्का सा छोटा सा। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो इसको d माइनस b कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, इसको माइनस आई अगर कर देंगे तो माइनस ई, और माइनस बी हो जाने से माइनस आई प्लस हो जाएगा ना। if you want to keep a minus over here, but it is a plus ib form, with problem नहीं, understood, clear। so ये जो है subtraction, ये जो है subtraction। तो subtraction में हम लोग आपको अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी आप करो। मेरे साथ हैं अभी अंशुमान, अभिषेक,
Soumya and Renu. Renu is our madam and Soumya is from Paradeep. Okay, he has come with some prawns, but unfortunately I am a born vegetarian. I couldn't eat. I'm expecting his father will send some paneer or kind of thing, some vegetarian thing. So eagerly I'm waiting for it from him. Okay, आपने मार दिया. और मेरे साथ मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा सौम्या है. सौम्या के साथ अभिषेक है. अभिषेक नॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन जबरदस्ती इसको आज चिंगड़ी मतलब प्रॉन खिलाया गया है और उसने भी टेस्ट किया, उसको अच्छा लगा. आज से वो नॉन वेजिटेरियन हो गया. अभी मेरा दोस्त अभी रहा नहीं. और एक सियाना लड़का है मेरे साथ, और वो है अंशुमन फ्रॉम नेकाटा एंड अभिषेक इज फ्रॉम भुवनेश्वर. So they have come to clear their fundamentals with Dr. Devitosh Acharya, with Raj Singh sir, with the team, the coordinators. Okay, and they are really enjoying our meeting, and it's a very fun that we are getting entertained together. And I get back my youth time, though I am quite young right now, but still I feel like I am quite younger with my kids, and I will back. So subtraction में हम लोग करते हैं कि z1 equals to 3 plus 4i, then z2 equals to 6 plus 7. तो अभी इसको अभिषेक करेगा, यहाँ कर सकेगा बेटा? हाँ, इजीली हो जाएगा. कौन कर पाएगा? अभिषेक या अंशुमन? आई वांट टू सी. यस सौम्या. हाँ, z1 minus z2. We have to get z1 minus z2. पक्का बराबर. z1 minus z2 कितना होगा? चलो अभी ये तो खाली देख के ही हमें पता चल जाता है. z1 minus z2 कितना होगा? तो क्या करेंगे? z1 से z2 को माइनस करना है. तो अभिषेक तू आगे करेगा. चल. अच्छा, हाँ, अभिषेक थोड़ा मोटा लड़का है, लेकिन अभी पतला हो जाएगा यहाँ पे आए. चल. तू पूरे बोर्ड को कवर कर रहा है बेटा, तो खा जा रहा है बोर्ड. चलो लिखो यहाँ साइड हो. हाँ चल. कैसे हुआ. हमने वो फॉर्मूला जो है बताया था आपको कि c minus d plus i into b minus d. ओके, तो इसमें आपको अभी देखना है c कौन सा है. c क्या है? ये आपका, हाँ, तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये c है, ये d है. तो इसको सीधा अभी डायरेक्टली करो ना. तो हम लोग क्या करेंगे? 3 plus 4i minus 6 plus 7i. That equals to 3 plus 4i minus 6 minus 7i. That equals to, that implies 3 minus 6 plus 4i minus 7i. That implies कितना हुआ? माइनस कितना हुआ? माइनस 3 प्लस आई अगर लेंगे फिर ये माइनस 3. तो ये हो गया आपका -3 माइनस 3i. हो गया? हो गया? क्लियर? a प्लस bi फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये i है. अंडरस्टूड? क्लियर?
अगर इसको Z2 माइनस Z1 करेंगे, Z2 माइनस Z1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3 plus 3 पक्का 3 प्लस 3 आ जाएगा। हाँ, तो इसको जो लोग देख रहे हैं इसको सॉल्व कीजिए अभी तुरंत। अभी Z2 माइनस Z1 को इमीडिएटली सॉल्व कर रहा हूं। अंशुमान जल्दी करके बता बेटा। हो गया? कितना हुआ? 3 प्लस 3 है। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व किया जाए आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग प्लीज कीजिए। ओके, अभी हम लोग आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो मल्टीप्लिकेशन जैसे नॉर्मली होता है वैसा ही होगा। नॉर्मली हम लोग जो अल्जेब्राइक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके, इट विल बी सेम। अगर z हम लोग लेते हैं z1 इक्वल्स टू a प्लस bi और z2 इक्वल्स टू c प्लस bi, तो मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू z2 कितना होगा? तो a प्लस bi इंटू c प्लस dr। तो जैसे होता है a इंटू c, ओके, प्लस adr प्लस bci और cbi जो भी करता हूं। ओके, इसको bci bci और फिर क्या हो गया? bdi square। दैट इंप्लाइज हम लोगों को एक चीज पता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फॉर्मूला है हम लोग पढ़े हैं, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये क्या हो जाएगा? AC माइनस BB। ओके, है कि नहीं? ये BD के साथ -1 मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा? -BD हो जाएगा। तो रियल पार्ट जो है AC और BD को हम लोग नजदीक ले आए और फिर I को क्लियर? तो ये A प्लस I की फॉर्म में लिखा गया, मल्टीप्लिकेशन मिल गया अभी हम लोगों को। क्लियर? कोई शक? अगर कोई शक हो भी तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, या तो फिर आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं। आई कैन लीव माय नंबर। ओके, तो I would request you all to visit once the Kautilya. It's a very nice platform where we are having the best faculties, this state of best faculties, and I myself is a teacher. So I personally take care of all my kids, all my children. I never say it's your children. So they are my kids because I have a dream to make India a genuinely educated country. I don't want any mess up with like all the organizations. Many organizations are doing like this. They are taking students as goods commodities like. So I want my kids, my students. They are my responsibility. I being a teacher, I realize it. Because I being a father, I realize always if my son deserves to get all the happiness and success, all the good education and everything, then these all my sons, all my daughters, all my children across the country, they must get this and they deserve to have this. And I wish each and every educator must realize it and always keep it in mind. All the teachers, they must keep it in mind that their profession is a responsibility like a doctor,
लाइक एन इंजीनियर। डॉक्टर्स जो है वो जीवन बचाते हैं, हम लोग जो है जीवन तैयार करते हैं, सो करियर बनाते हैं बच्चों का। और ये कभी भी कतई भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग जो है वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। हम लोगों का प्रोफेशन जो है, पैशन जो है, ये टुगेदर है एंड वी एंजॉय, ऑल द टीचर्स दे एंजॉय द टीचिंग प्रोफेशन। और जब हर एक बच्चा कभी डॉक्टर बनता है, कभी इंजीनियर बनता है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई कहीं पे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई बाहर देश में है, when they meet me, when they hug me, when they praise me, when they love me, when they ask me on Teachers' Day, when they wish me, I feel like to be in heaven. I know a teacher always lives in the heart of the students itself, and after the demise also, after the day, a teacher never dies. Okay, physically demise होता है, लेकिन teacher रहता है। So ये बहुत जरूरी है कि हर टीचर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग पैसा लेते हैं, कुछ लेते हैं, कोई देता है तो, लेकिन इसका मतलब जो है हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है उससे बहुत ज्यादा है। हम लोग पैसे के बूते पर या फिर हाँ हम लोग को अपना घर चलाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन we have to always care for our responsibility. This is the motto of the Kautilya, and Kautilya is such a brand who really cares for education as per Kautilya's reason. Kautilya means Chanakya's reason, and I really follow all this and my children also. So now we are coming to the multiplication. Okay, when we multiply z with z1 with z2, we got this. Now let us do. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक कुछ करेंगे वैल्यू डाल के। ओके, कुछ वैल्यू डाल के करेंगे। सो लेट अस टेक z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2y एंड z2 इक्वल्स टू 4 प्लस 5y। अभी बच्चों करके दिखाओ, ये तो सीधा अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, z1 into z2 का क्या निकालेंगे, 3 plus 2y, ओके, into 4 plus 5y। तो कितना हुआ, 3 into 4, अभी कितना हुआ, 3 4 जा 12, फिर 3 into 5 कितना हुआ, 3 5 जा 59 plus 2 into 4 8i plus 2 into 10 I square, I into I square। सो अभी क्या हुआ बेटा, आप लोग देखो 12, ये माइनस 10 हो गया क्योंकि I square, because I square equals to -1। तो अभी 12 minus 10, ओके, प्लस I हमने ले लिया, ये हो गया 15 प्लस 8। तो अभी कितना हो गया बेटा, 2 प्लस I, ये 15 प्लस 8 कितना हो गया, हम सही है ना, हाँ, तो 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23। सो इसको हम लोग 23 लिख सकते हैं, ये आ गया a प्लस I की फॉर्म। अंडरस्टूड, क्लियर। अभी जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी अगर दे दिया जाए तो आप लोग कर सकते हो आराम से, हाँ, कोई बात नहीं। सो अभी जो है, अभी हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोई भी नंबर आप लोग लेके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अभी हम लोग जो है इसका सबसे पेचीदा बोल सकते हो या फिर डिफिकल्ट बोल सकते हो या फिर इजीएस्ट मेथड जो है डिवीजन। ओके, डिवीजन में हम लोग एक चीज यूज करते हैं जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं, हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये कॉन्जुगेट जो है ये अक्सर डिनोमिनेटर का लिया जाता है। ओके, वी ऑलवेज टेक कॉन्जुगेट
of denominator. Okay, we always take conjugate of denominator. So ये conjugate चीज क्या है? ये हम लोग करेंगे अभी जब डिवीजन करेंगे. So चलो let us start doing division. Z1 equals to 3 plus 4R. Z2 हाँ और एक चीज मैं भूल गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप लोग लिख लो. मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा ना, डिवीजन से पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिख लेंगे. ओके, तो ये आप लोग मेंशन करो साइड में, जो मल्टीप्लिकेशन जहां पे किया है कि ये जो है क्लोजर लॉ, वही एडिशन का जो क्लोजर लॉ. ओके, डिवीजन से पहले प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन करेंगे लेकिन ये बहुत जरूरी है. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो पहला जो है क्लोजर लॉ है. क्लोजर लॉ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, मल्टीप्लिकेशन लिखो, क्लोजर लॉ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स is always a complex number. Then it is commutative. It is commutative. Z1 into Z2 equals to Z2 into Z1. Okay. So it is commutative. Then comes associative. Associative मतलब क्या होगा? Z1 into Z2 into Z3. Okay. इक्वल्स टू कितना होगा? Z1 into Z2. Okay. into Z3. क्लियर? एसोसिएटिव हो गया अभी. फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा किसी नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें ताकि वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. तो वो क्या होगा? Z1 into 1 equals to Z1. Z1 into 1. ओके, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो क्या है? 1 ही है. ओके, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसको किसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा. तो Z1 into 1 by Z1 equals to 1. ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1 by Z1. ओके, सो फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है ना, Z1 into Z2 plus Z3 equals to Z1 into Z2 plus what? Z1 into Z3. ओके, क्लियर? तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसको से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. क्वेश्चन? वेरी गुड. सो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लिए. नाउ वी आर गोइंग, वी विल बी डूइंग द डिवीजन. एंड डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि कॉन्जुगेट हम लोग डिनोमिनेटर का लेते हैं. सो वो कॉन्जुगेट है चीज क्या? कॉन्जुगेट है चीज क्या? सो बेटा, तो अगर a प्लस IB ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो इसका कॉन्जुगेट जो है a माइनस IB. ओके, a प्लस IB जो है ये आपका z हुआ तो इसका
कॉन्जुगेट जो है, कभी इसको हम लोग डैश लिखते हैं, कभी बार लिखते हैं, तो ये आपका कॉन्जुगेट नंबर a माइनस आई, बीच का जो साइन है वो चेंज। क्लियर? हाँ, तो ये है आपका कॉन्जुगेट, ये आपका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हेल्प्स अस ऑलवेज इन डिवीजन। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट बहुत जरूरी है, और कॉन्जुगेट हम लोग किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर का। ओके, चलो बेटा करते हैं अभी। कैसे करें, क्या करें? ये आपका Z1 हो गया a प्लस आई बी, Z2 हो गया c प्लस आई डी। तो Z1 बाई Z2 हम लोग कैसे करें? a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी। इसका मतलब है a प्लस आई बी इंटू 1 बाई c प्लस आई डी। क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं, कॉन्जुगेट लिया नहीं हमने, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का हमने दिखाया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? चलो, तो अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे? जैसे मैंने बोला, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? c प्लस आई डी है, तो कॉन्जुगेट कितना होगा? c माइनस आई डी होगा, है कि नहीं? तो ऊपर में हम लोग c माइनस आई डी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी c माइनस आई डी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो अभी हमने कॉन्जुगेट ले लिया, तो इसका मतलब कितना होगा? आप लोग ऊपर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर का क्या निकलेगा? शुरू में हम लोग जो किए थे मल्टीप्लिकेशन में निकाल के बताओ बेटा। AC माइनस IAD प्लस IBC माइनस BD डिवाइडेड बाय, ये तो आपको फॉर्मूला पता है अलजेब्रा में, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस id का स्क्वायर। क्लियर? सो ये हो गया अभी ac, तो माइनस i स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा प्लस bd। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे? माइनस आई अगर हम लोग लेते हैं कॉमन, तो ये होगा आपका AD प्लस BC। ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ? c स्क्वायर माइनस ID का स्क्वायर कितना हुआ? I स्क्वायर D स्क्वायर। I स्क्वायर D स्क्वायर मतलब क्या हुआ? I स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? -1, तो ये c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होगा? AC प्लस BD डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ओके, माइनस I इंटू AD प्लस BC, ओके, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो a प्लस id फॉर्म में हम लोग लिख लिए, हो गया? क्लियर? अभिषेक समझा? ये यहां तक समझ गया? हाँ, तो ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाई z, इसका मतलब x बाई z माइनस y बाई z, तो वही तो लिखा हमने। ये x है, ये y है, ये z है, तो x बाई z, ये y बाई z हुआ, तो ये हमने लिखा a प्लस आई बी या फिर माइनस आई बी फॉर्म में।
अब इसको अगर प्लस करना चाहो तो इसको AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस I अगर करते हो, नहीं तो होगा ही नहीं, माइनस आई होगा। ओके नहीं बोलेगा, ये आपका हो गया B प्लस AB है कि नहीं, B माइनस AB हो गया, B माइनस AB हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसमें बेटा एक चीज देखते हैं ना, कभी ये माइनस है और ये प्लस है, तो BC माइनस, ठीक 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 है करेक्ट। तो ये BC है, वही मैं मिस कर रहा हूँ BC। तो ये जो है ये A प्लस आई की फॉर्म में आपने लिख लिया, क्लियर। अभी हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, हम लोग नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये बहुत जरूरी है। अभी हम लोग करेंगे Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4i और Z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2i। अभी करो उसको, छोटा सा नंबर लेते हैं 2 प्लस 2i, चलो देखते हैं। हो गया, हम लोग क्या करेंगे Z1 बाई Z2 हम लोग करेंगे, अभी वक्त नहीं है। 3 प्लस 4i और फिर 2 प्लस 2i, क्लियर। तो ये जो है 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2i, 2 प्लस 2i इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस 2i और ऊपर में भी हम लोग 2 माइनस 2i हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तब क्या होगा बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 is 6, ओके 3 2 is 6 माइनस 3 2 is 6i, ओके प्लस 4 2 is 8i, ओके माइनस 4 2 is 8i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 a स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, मतलब कितना हुआ ये 2 का स्क्वायर, इसको लिखो 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 6 प्लस 8, क्योंकि i स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो -1 into 8 -8 माइनस तो प्लस, तो इसमें क्या होगा 6 प्लस 8 और फिर क्या होगा, अगर हम लोग प्लस i लेते हैं तो ये होगा 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो है 4 है, प्लस कितना होगा, प्लस कितना होगा, ये i स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है कि नहीं, तो -4 माइनस प्लस 2, ये सब। तो ये कितना होगा 6 प्लस 8 14 डिवाइडेड बाय कितना होगा 8 प्लस 8 माइनस 6 कितना हुआ 2i 2 बाई 8i। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना होगा, अगर 2 में करेंगे 2 में ही जाएगा तो 7 बाई 4, ओके प्लस i into 1 by 4, क्लियर। सो ये आपका डिवीजन आ गया, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हो गया। हाँ कॉम्प्लेक्स अभी कॉम्प्लेक्स रहा कि सिंप्लेक्स हो गया, इससे ज्यादा और है, लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है कि सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है। तो अभी बेटे बच्चों
अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो चीज है, ये अलजेब्राइक पार्ट हमने कर लिया। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देके हम लोग क्लोज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसका जो है पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो है पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हमने पढ़ा है आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, -1। क्लियर? इसका मतलब आई जो है वो रूट ओवर ऑफ -1। क्लियर? अगर आई स्क्वायर -1 होता है तो आई क्यूब कितना होगा ना, आई स्क्वायर इंटू आई। इसका मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 और ये इंटू आई, तो इसका वैल्यू -i है। आई क्यूब का वैल्यू जो क्या है -i है। तो फिर हम लोग i⁴ मतलब कितना हुआ -1 इंटू -1, ये कितना हुआ 10। ओके, तो हमने i⁴ 1, i⁴ 2, i⁴ 3 और i⁴ यहां तक पढ़ लिया। अभी हम लोग i का कोई भी पावर है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग करते हैं। ओके, और वो जो फॉर्मूला है वो बोल रहा है i⁴k प्लस 1, i⁴k प्लस 2। ओके, i⁴k प्लस 2 और फिर होगा i⁴k प्लस 3। i⁴k या फिर k का वैल्यू जो है, k का जो वैल्यू है वो है एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं या होल नंबर आप ले। अगर 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, k का वैल्यू अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर k का वैल्यू 1 है तो इसका क्या निकलेगा, +1 होगा। तो i⁴ के हर हालत में +1 ही होगा। क्लियर? i⁴ के हर हालत में +1 ही होगा। तो i⁴k प्लस 1 कितना होगा, i⁴k प्लस 1 कितना होगा, इसका होगा 1 इंटू आई, मतलब आई ही होगा। i⁴k जो है वो 1 इंटू i⁴ मतलब आई ही होगा। तो i⁴k प्लस 1 आई ही होगा। i⁴k प्लस 2 कितना होगा, 1 इंटू i² मतलब -1 होगा। क्लियर? तो i⁴k प्लस 3 कितना होगा, अरे वाह, -i। तो इसको अक्सर याद रखना। अभी हम लोग करेंगे i⁵ कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 4 के हम लोग ले रहे हैं, हम लोग 50 को डिवाइड करेंगे 4 में। तो ये जो है ये क्या है, डिवीजन में आपको पता है डिवीजन, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ओके, तो ये क्या है, डिविडेंड है, और ये क्या है, डिवाइजर है। और 4 1s are 4, now 10, then 4 2s are 8, रिमाइंडर कितना हुआ 2, रिमाइंडर कितना हुआ 2। तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे i⁴ into 12 plus 2। तो अभी यहाँ पे k का वैल्यू आया 12, तो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कौन सा फॉर्मूला, i⁴k प्लस 2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1।
अंडरस्टूड? Yes. चलो अभी निकालते हैं I to the power 69. करो I to the power 69. अभी हम लोग कर रहे हैं I to the power 69. मतलब 69 का डिवीजन करते हैं हम लोग, तो ये कितना होगा 4. ओके, तो 4 1 जा 4, ये 19 हुआ, 4 7 जा सॉरी हाँ ठीक है 29, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 1 हुआ, तो फिर ये जो है आपका 4 और ये जो है आपका k और ये जो है आपका वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे I to the power कितना हुआ बेटा 4 into 17 plus 1, 4k plus 1, तो 4k plus 1 का वैल्यू कितना हुआ I to the power 69 का वैल्यू कितना होगा, कितना हुआ आई है आई क्लियर? अभी जो भी नंबर आपको देंगे, जितना भी बड़ी संख्या हो, जितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जाएगा, तो आप लोग आई का जो भी पावर होगा उसका वैल्यू क्या है आप लोग निकाल सकते हो, तो वो या तो 1 होगा या तो आई होगा या तो -1 होगा या तो -i होगा. क्लियर? और ये फॉर्मूला जो है इसके पिछले फॉर्मूले में ये में हमने लिखा था, और ये आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, एंड ऑल ऑफ यू मस्ट राइट इट. So now I am winding up this session of complex numbers. Okay, and I'll be discussing many things of complex numbers, many exercises we can do further also. And thanks to you all for watching me live. And it was really a great, nice session with all of you. I think it must have been a learning experience for you all. And we are having the best teachers at the Cordelia, and I hope all of you must have enjoyed it a lot, learned a lot. I hope you learned a lot. So I welcome you all to have a visit at our Patia campus, and always keep it in mind, the Cordelia is the original brand, and there is no somebody, if they are writing Cordelia in their college's name, they are not a part of us, and they are not the Cordelians. So the Cordelia is having its campus at plot number 46, Patia, and we are having our head office at West Vinod Nagar, New Delhi, Patparganj. So stay connected to us and continue your learning with us. Next time I am coming with more concept of chemistry, and very soon I will be appearing against you, in front of you, with more concept, and that is on coming 8th of July. We will meet same time here on the Cordelia Educational Trust page, live, to learn more concept. We will make it very clear, and love you all. God bless you all. Stay happy, stay healthy, always maintain social distance, wear mask, and always sanitize yourself. If not required, don't get out of your home. Take care of yourself, your children, your parents, and everybody. Take care of the society. Love you all. Bye-bye. I'm signing off. Thank you.